वगैरह आए हैं ना, तो वो हॉस्टल से लड़कियां गई हैं, बस गई है तो वो उधर गई हुई है। अच्छा तो चले, रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा इशू भी नहीं, लेकिन ये काम उसको आता है. So we start with the address resolution protocol. So as you already know, this is in abbreviation form. It is called ARP. ARP. So this protocol is used for Salman. It is used for to resolve the address. What it means? It means that if you have an IP address, if you have an IP address of a device on your local area network. I repeat, if you have a IP address of a device, it means host, device means host. You have an IP address of a host, but you don't know, but you do not know the MAC address. I hope you understand what is the difference between IP address and MAC address. IP address is a layer 3 address and it is of 32 bits. Again, I'm saying it is only for IP version 4. It is this R process is only valid for IP version 4. So you don't know the MAC address. So in this case, what will be the scenario? Because in your layer 2 header, in your layer 2 header, you have to put two things. Number one, destination MAC address, destination MAC, and the source MAC, and the source MAC. While at layer 3, you will add, now, the header of IP version 4, as well as the just we have seen the Ethernet header. So in the Ethernet header, which is layer 2 header, you need to provide destination address of the destination MAC address and the source MAC address. And in the layer 3, you need to add the source IP address, source and destination IP address. I hope you agree with me. Yes, sir. Okay. So Salman and Alina, what is the solution? You already know your own IP. So you know your own, you mean the source IP, and you know the source MAC, which means your own MAC address. You know these two things, no problem. You know the IP address of the destination, but you may not know the MAC address of destination. Agreed or not, Salman? Okay, probably Salman is don't have a mic, but at least you agree with me. Everyone should agree with me on these two lines. That I know my own IP, I know the IP address of the destination. I know my own MAC address, but I don't know the MAC address of the destination. And that destination means the destination which is local. Local means within the LAN. एसन क्लियर है इस बात पे? जी सर. Okay. Okay. So Salman left us. Okay. So what is the solution? The solution is I want to find this MAC address of the destination, and that is done through the ARP process. Simple. This MAC address of the destination is found, searched via ARP process. This is the job of once you have all the 4 addresses, you can send the packet to the destination. Simple. Again, I'm repeating, Alina,
that this IP address, this R process is only valid within the local area network and not valid in the remote networks. We will see that if you have to send packets, because mostly you have to send the packet to the remote networks, like for example to Google, to Facebook, to YouTube, and so on. So what is the solution? I will explain this as well. But do remember simple that the R process is for the local area network only. Agreed? Yes, sir. Okay, nice. Okay, nice. So let me continue now. So here you can see that the okay. G. So our job is to talk about the MAC and IP. So you know MAC is a layer 2 address which is a 48 bits. 20 the first 24 bits, mean the leftmost bits, represent the organization which is making these cards, and the last 24 items are bits represents the last 24 bits represent the serial number of that item which is installed in your computer. Simple. IP is 32. IP version 4 is a 32-bit address, and this address is you may give it statically or dynamically, not an issue. Statically you can enter onto an interface, and in the dynamic cases you know that you get this IP address from the DHCP, no issue. Then is the question might be that how I know the IP address of the destination. Through the DNS, we understand that we may provide the name of this computer, which is the URL, and the DNS will return us the IP. So we can find the IP address of the destination. Only thing which is not known is the MAC address of the destination, and that can be found by using the R process. And then we will see some issues related to the ARP as well, because ARP uses broadcast. So we'll see that how it will affect the performance of the network. Especially the third point is valid for our, from the point of view of our cybersecurity. The first two are totally ITN, no difference. Okay, so we should continue. So you already know that what is your physical address, which is also called as the MAC address, which is also called burnt-in address. So these are different names for the same 48 bits. And the logical address, IP address. So this is a 32-bit address, you know. But if still there is any question, I will be happy to respond. Okay, if there is no question, okay, nice. If there is no question, then you can understand that very well, that to send a packet, what you need the IP version 4, you need the MAC, the layer 2, which has been shown in the on the slide with the gray color, which is the destination MAC address and the source MAC address, while the purple one represent the IP address, which means the layer 3 header. So this is layer 3 header, this is layer 2 header. Okay. So you know your own MAC address, which is in this case, for example, 000A. You know your own IP address, which is 192.168.1.110. You know the IP address of the destination, which you may have obtained through DNS, which is 192.168.1.50. So you know this. You know your own IP address, but you don't know the MAC address of the destination. That is the problem. And that problem is resolved through ARP. Okay. If it is clear, please, anytime if you feel some problem, some issue, please interrupt me. I'm a little fast. Why? Because we understand that these are already covered chapters. We understand them.
Only as I said that Saleh and Laiba may be, because Laiba missed many classes, and Saleh had not taken even the ITN course. That's the reason. And when the attack will be there, or when the defense will be there, which is the real task of your cyber security, at that time, ladies and gentlemen, these protocols, these protocols which we have studied in the ITN course used are used for attacking. So that's the reason it is important to learn them. That's the reason it is important to understand them in good detail. So here in the ARP case, what is the scenario? In the when it is local, as you can see here, that the source and destination are local to one another. What do you mean by local? It means they both belong to the same network. They both belongs to the same network. As probably you can see on my screen, as you can see on my screen, that the IP address, okay, I should put the power to the laptop so that it should not power off. Give me a second. Yeah, now it's okay. Now it's fine. Okay, so what mean by local, Asan and Alina? By local, it means that the IP, the network address, which is, the network address is in the IP. So the network address of the both is same. As you can see that it is 192.168.1, and destination server also have an IP address 192.168.1. Only the host part is different, and we understand that it should be different. So they are local to one another. So how it will be done? This device will send a broadcast, because it doesn't have the sort here, it cannot put anything. So what is the solution? It should put and that is a big problem as well, because it is broadcasting. And if it is a big network, maybe 1,000 nodes or even more, this broadcast may be an issue, because it is consuming the bandwidth and the resources of other machines, because everyone have to collect it till layer 2, and then the layer 3 will decide that it is not mine, for example. So that here I will be putting, because here it is, the MAC address is not known. So I will be using the broadcast, and will send the broadcast to all the machines within the local area network. And then the device, because now it is broadcast, every node, maybe 50, 100, whatever the number is, everyone, Salman, will receive it. And because it is broadcast, so physical layer will receive, the MAC layer will receive, the data link layer will receive, and then it will go to the network layer. And at the network layer, there is an IP address. So this destination address 1.50, as you can see here on the screen, that will be compared by all the machines, and only one machine will have this address, and the rest all will ignore it then. But still they captured it, they received it, they processed it till the third layer, and only one of this machine will respond that this is my MAC address, because now the destination knows the source MAC, which will become the destination MAC in this case, and it knows the IP address of the source, it knows its own IP address, so it can fill this packet again back and can send to a single machine its own MAC address. So what this ARP will do? This will first populate its own ARP table. It will populate its own ARP table. Once the ARP table is populated, then it will make a packet accordingly and send to the destination. Are you getting my point? Salman, Alina, Yes. Asan? Okay. Yes. If it is good, good.
सलमान आपका नेट खराब है क्या? क्या इशू है? यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. क्या माइक का मसला है? Okay, so I may write here CMD and I can show you ARP minus A. So here you can see on my screen that for every, this is the broadcast address as you know, 255. So the physical address is also, which means the MAC address is also same. Then it is the 224. Salman, can you tell me this 224 range? This 224 up to 239 range? That is used by which IP addresses are these? Classes में थोड़ा सा ख्याल करें. Class A, B, C, D something. SN कौन से कोई रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीकास्ट को सर. मल्टीकास्ट को. शाबाश. D क्लास को. और ये अगर आप देखें तो यहाँ पे इस वक्त मेरा जो IP एड्रेस है that is probably 192.168.10.8. अगर आपको मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं है तो आई कैन डू IP config. आप भी कर सकते हैं IP config /all and you can find that my IP address is 10.8. 10.8. 192.168.10.8. And now if I do again ARP minus A, so it can show that 10.1, which is my gateway. You can see here as well. Here my gateway is 10.1. 10.1. Now this 10.1 is here, as you can see here. So the gateway MAC address is, so basically this is an ARP table, and the ARP table is showing the binding between the physical address and the logical address, between the IP address and the MAC address. This is my broadcast address. So this is my broadcast MAC. Again, these are the some because I don't have the more computers on this network and I have never communicated with them. That's the reason you are not seeing their MAC addresses and so on. Mostly what I am doing in my network, I am talking to the remotes like to you people. So for this, I need only this address, which is, you know, default gateway. ठीक है सलमान? Yes, sir. Fine. So let me continue. So here now the question is that if my computer is not local, MAC address तो चाहिए. So remote का कैसे पता चलेगा सलमान इन एसन? अलीना को पता है, उसने अभी बड़ी रिसेंटली उसने IP वर्जन 4 भी और वर्जन 6 भी पढ़ा है. दोनों का सोर्स और डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस है, वो डिफरेंट होगा. जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं मेरा IP एड्रेस अभी आपने देखा कि probably 192.168.10.1 है, सॉरी 10.8 है. और आप देख सकते हैं कि इसका सबनेट मास्क जो है वो /24 है. इसका मतलब है इसका नेटवर्क एड्रेस है 192.168.10.0. 10.0. अगर मैं आपको, अगर मेरी इस बात से आप इत्तेफाक कर रहे हैं कि मेरा IP एड्रेस 192.168.10.0 है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग, आई वांट टू टॉक टू facebook.com, तो मैं उसको करता हूं पिंग, फॉर एग्जांपल facebook.com. so I'm sending the ICMP packets to facebook.com, www.facebook.com. So you can see the IP address of this device is 157.168.10.0.
240.277.35. You can see my address and this address, network address, are totally different. And how you can find this address of network? By ending, shabash, by ending your address with your subnet mask, and then ending the destination IP address with your MAC address. Sorry, your subnet mask. So if you end your IP, which is in my case is 192.168.10.8, if I end it with 255.255.255.0, the result will be, 192.168.10.0. So I write here that this ending process generated 192.168.10.0. And when I ended with this 157.240.227.35, I will be getting 157. The ending process will result in 157.240.227.0. So can you comment, Salman, whether the two are same? मुझे तो सेम लग रहे हैं, आपको सेम लग रहे हैं? ऐसा there is some issue with the mic of Salman, probably that's the reason we are not getting his sound clearly. But what is the response you are, Alina? मेरी आवाज आ रही है? They are different. They are never same. No, sir, they are not the same. Because they are not same, it is understood that they are different networks. So we call this the remote, that they are both remote to one another. They both are remote. They are not local. So the same has been shown in this figure as well, which you are looking now. That my source IP in this example is 192.168.1.110, while my destination is 172.16.1.99. So source and destination are totally different. Their network part is totally different. So we call them, and again, the routers in between, this clearly represent that they are not part of the same network. Here we have one network, second network, three networks we have. So source and destination are, I can say, two networks apart from one another. We have seen today, especially Alina, that we pinged today, for example, Facebook or others, and they were 15-16 hops away from us. ठीक है ना? लेकिन क्या सलमान मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है? क्योंकि आपके माइक में तो इशू हो सकता है, लेकिन मेरे आपके रिसीवर जो है, स्पीकर जो है, वो कम से कम आपको क्लियर आवाज देना उसके लिए जरूरी है. अदरवाइज you are missing. Although this is not something, yes sir, clear. Okay, then fine. Then there is no issue. Okay, so gentlemen, you can see again that the source know its own IP, the source know its own MAC. So it can put in this table, in this headers, its own IP and own MAC. The gray part as well as the purple part. It knows the destination address of this file server. How? Maybe through DNS. So it knows this as well. No issue. Its only issue is I don't know the MAC address of the destination. I don't know the MAC address of the file server. So, because I know it is not local to me. So because ARP is using broadcast. आप पूछ सकते हैं मुझसे, चले ऐसा जवाब भी दे देगा अभी कि आखिर ये ARP जो है, ये वैन में क्यों नहीं काम करती, रिमोट में क्यों नहीं काम करती, ये सिर्फ लोकल में क्यों काम करता है?
जी हसन। अदरवाइज अलीना ने अभी 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 ये चीज पढ़ी है, शी कैन रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। मैं इससे स्टूडेंट नहीं पूछता कि शी इज अ 4th और 5th सेमेस्टर स्टूडेंट नाउ, तो वो आपसे बहुत जूनियर है। तो अलीना ये कह रही है कि जी इसमें ब्रॉडकास्ट इस्तेमाल होता है और राउटर ब्रॉडकास्ट को गुजरने नहीं देता। तो अगर ये ब्रॉडकास्ट करे भी कि जी जिसका आईपी एड्रेस 172.16.1.99 है वो मुझे अपना मैक प्रोवाइड करे, बस ये राउटर इसको यहीं पे गिरा दे, तो ये नहीं जा सकता। गॉट द पॉइंट एहसन एंड सलमान? जी सर। ओके, तो इसके लिए फिर हमने क्या मेथड सोचा हुआ है? हमने ये सोचा हुआ है, ये मेथड है कि जब इसको पता चल जाता है सोर्स को कि मेरी डेस्टिनेशन जो है वो मेरे साथ लोकल नहीं है, तो ये अपने डिफॉल्ट गेटवे, उसका आईपी तो उसको पता है, ये उसका मैक एड्रेस फाइंड करता है थ्रू आर्प। कि लाजमी तौर पे इस राउटर का आईपी इसको पता है, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे आपने यहां भी देखा, इसको अपना डिफॉल्ट गेटवे पता है, इसको अपना डिफॉल्ट गेटवे पता है कि मेरा डिफॉल्ट गेटवे जो है, तो यहाँ ओके दिस इज वर्चुअल, अगर मैं वाईफाई पे चला जाऊं जी, तो इसको अपना डिफॉल्ट गेटवे पता है। तो ये अब क्या करेगा, इसको अपना आईपी पता है, इसको डिफॉल्ट गेटवे का आईपी पता है, दो चीजें पता है। इसको अपना मैक एड्रेस पता है, तो ये इसका मैक एड्रेस मांग लेगा आर्प के जरिए। तो आर्प इसको इसका, और आपने तो देखा कि नॉर्मली ऑलरेडी ये एड्रेस इसके पास मौजूद होता है, जैसे मैंने अभी आपको आर्प -a करके दिखाया, तो इसके पास ये एड्रेस, इसका एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस मौजूद है, जो कि है 000E4F4C016FD। तो ये इस पैकेट को सोर्स में लगाएगा अपना मैक, डेस्टिनेशन में लगाएगा मैक एड्रेस ऑफ द लोकल गेटवे, और सोर्स में अपना आईपी, डेस्टिनेशन में रियल डेस्टिनेशन जो भी है 172.16। तो अब ये पैकेट जब इसके पास, ये तो इस लेयर के मुताबिक पहुंचेगा, जब ये लेयर को इस्तेमाल करके ये इसके पास आएगा, ये देखेगा कि सोर्स तो जो भी है इट्स नाइस, लेकिन डेस्टिनेशन तो मैं नहीं हूं, मेरा एड्रेस तो ये नहीं है। तो ये देखेगा अपने राउटिंग टेबल को, और राउटिंग टेबल से ये देखेगा कि जी ठीक है, इसको किसी, यहाँ तो हमारे इस एग्जांपल में सिर्फ राउटर की दो ही इंटरफेसेस हैं, लेकिन दे कैन बी मल्टीपल इंटरफेसेस, तो उनमें से किसी एक इंटरफेस को ये चूज करेगा, ये फिर आर्प करेगा कि मेरा इसका मतलब ये इसलिए हम कहते हैं डी कैप्सुलेशन एंड रीकैप्सुलेशन, डी कैप्सुलेशन एंड रीकैप्सुलेशन, कि ये इसको रिमूव करेगा, सोर्स में अपना मैक डालेगा, डेस्टिनेशन में या तो आर्प करेगा या इसके आर्प टेबल में पहले से मौजूद होगा, ये उसका मैक एड्रेस यहां पे डालेगा, सोर्स में सोर्स का आईपी रहेगा, डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन का आईपी रहेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि टू सम एक्सटेंट जो आपका लेयर 3 हेडर है वो तब्दील नहीं होगा। एग्रीड और नॉट सलमान? लेयर 3 का हेडर तब्दील नहीं होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? तो चलें एसन, लेयर 3 का हेडर तब्दील होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं होगा सर, आप ठीक कह रहे हैं। तो इस केस में तो ऐसा नजर आ रहा है कि ये दो फील्ड हम दिखा रहे हैं, तो नहीं होगा, ठीक क्या आप लोगों ने? लेकिन आपको पता है कि रियल आईपी का हेडर जो है वो तो कितने बाइट्स का है? 420 बाइट्स का। तो 20 बाइट्स में टीटीएल भी है और चेकसम भी है, तो टीटीएल तो अब कम होगा, तो तब्दील होगा,
लेकिन एड्रेसेस तब्दील नहीं होंगे। यहां तक ये बात दुरुस्त है कि टीटीएल एक कम हो जाएगा, टीटीएल जब कम होगा तो लाजमी तौर पे चेकसम तब्दील हो जाएगा, तो ये दो फील्ड तब्दील होंगी लेकिन एड्रेसेस तब्दील नहीं होते। सिंपल इज दिस। फिर जब ये यहां पहुंचेगा तो ये दोबारा इस हेडर को रिमूव करेगा। इसलिए आप देखें यहां पे इसने 3 कलर इस्तेमाल किए, एक ग्रे, एक पर्पल और एक ग्रीन कह लें, कि 3 दफा इसका लोकल जो इसका लेयर 2 का हेडर है वो रिमूव किया जाएगा, नया हेडर लगाया जाएगा। पहले ग्रे हेडर लगा, फिर ग्रे रिमूव किया जाएगा तो पर्पल लग जाएगा, पर्पल रिमूव किया जाएगा तो ग्रीन लग जाएगा। So that has been explained here. Okay. Then is the overview of ARP. You know very well that this ARP is used for resolving the address, IPv4 address to the MAC address. So the two functions are, एक resolve करो, number 2 अपना टेबल बनाओ, अपना टेबल बनाओ। So maintaining a table of IP to MAC address mapping, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देख रहे हैं, there is a table which is mapping the IPv4 addresses with their MAC addresses. Clear? Yes. So this is very good, very nice. This is the basic goal. Then वही बात जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की, एग्जैक्टली वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिसाल के तौर पे ये आपका नेटवर्क है जिसमें एक का तो सोर्स है H1 और एक आपका डेस्टिनेशन है विच इज फॉर एग्जांपल H4। तो H1 जो है जिसका आईपी एड्रेस ये है, जिसका मैक एड्रेस उसको पता है, ये ब्रॉडकास्ट करेगा, सबके पास पहुंचेगा, लेकिन H4 का मैक आईपी एड्रेस मैच कर जाएगा विच इज 1.7 एज यू कैन सी हियर, एंड 1.7 इज दिस वन, while H2 and H3 has an IP address of 1.6 and 1.8. So they will not respond, while this node will respond back with its own MAC address. So this is the first part of the ARP. The second part is that it will populate its own table with this entry that 1.7 of the MAC address may be 000D. So it will put it in the table and then will use these addresses to send the packet towards H4. Towards H4. So here is a video. I always appreciate कि आप जब भी आपके ये वीडियोस आए आप इनको देखा करें तो आपको उससे भी बेहतर समझ आ जाएगी विच जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये वीडियो है। ओके, अब क्वेश्चन ये है, क्या ये आर्प की एंट्री फॉरएवर है? द आंसर इज नो। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आप लैन में, क्योंकि लैन में हो रहा है मसला, क्यों परमानेंट नहीं है? बेहतर तो होता कि परमानेंट होता, बस एक दफा मालूम कर लिया ये मैपिंग फॉरएवर होता। द आंसर इज नो, क्योंकि लैन में आईपी तब्दील होते रहते हैं। आपने एक आईपी लिया, आप अपना कंप्यूटर ऑफ करके निकल गए लैब से, दूसरे को आईपी मिल गया, अब उसका मैक तो डिफरेंट है। अगर हम उस आईपी के साथ यही मैक बांधे रखें फॉरएवर तो डेफिनेटली दिस विल बी ए वेस्टेज। इस वजह से हम डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर वो मैक इस्तेमाल बाद में नहीं हो रहा, ये मैपिंग इस्तेमाल नहीं हो रही, इसका मतलब हम ये लेते हैं कि वो जा चुका है नेटवर्क से और हम उसकी एंट्री को डिलीट कर देते हैं, यानी दिस इज नॉट फॉरएवर। हम उसको क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे इफ आई रिमेंबर करेक्टली आर्प माइन ARP होता है, ARP माइनस -D
कहता है कि ARP इंटी डिलीशन फेल्ड। क्यों? क्योंकि मेरा प्रिविलेजेस जो हैं वो ऑर्डिनरी यूजर के हैं और ये काम एडमिनिस्ट्रेटर कर एडमिनिस्ट्रेटर सकता। बिल्कुल जी, ठीक है। जैसे कि आपके लिनक्स मशीन्स में आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे क्या कहते हैं? रूट। आपके सोलारिस में कहते हैं फॉर एग्जांपल सुपर यूजर। तो मुझे वो कह रहा है कि द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन रिक्वायर्स एलिवेशन। तो अगर मैं इसको बंद कर दूं और अब लिखूं यहाँ पे CMD, दोबारा CMD, CMD, और इसको कहूं जी ओपन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस, अब मैं देखिए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे सामने आ गया हूं। अब अगर मैं करता हूं ARP-A टू विजुअलाइज, फिर मैंने लिखा APR ARP ARP-A, तो ये मुझे ARP की सारी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की है वो मौजूद है। लेकिन अगर मैं कर दूं ARP-D नाउ, तो ये हो गया। और अब अगर मैं करूं ARP-A, तो देखें सिर्फ अभी क्योंकि मेरी आपसे कम्युनिकेशन चल रही है इस वजह से ये एड्रेस आ गया वापस, क्योंकि मेरे पैकेट कोई ना कोई पैकेट डेफिनेटली आप लोगों की तरफ गया। जिसके पास ये एड्रेस नहीं था, इसने आर्क किया, एड्रेस ले लिया और अपने टेबल को पॉपुलेट कर लिया। इस बात समझ आ रही? जी सर। गुड। देखिए एड्रेस बढ़ गए, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज पॉपुलेटिंग इट्स टेबल। गुड सलमान। देखिए यहाँ पे वही, अगर आप राउटर पे काम कर रहे हैं तो यू शुड यूज द कमांड शो IP ARP। तो आप कहेंगे जी दिखाते तो हो नहीं, तो क्या मसला है कि मैं ना दिखा सकूं? आई कैन गो टू दी packet tracer and I can show that. And you also have the packet tracer. You can do the practice as well. So I can give my credentials, which is IHSAN @gmail.com. Password now seems fine. Okay, I'm here. I use a router here. I use a switch here, for example. And to a switch, I can connect a few end devices, which is PC1, which is PC2, sorry, PC2, PC3 as well, or laptop if you wish. And then you can use the media, and in the media you can use the straight cable, copper straight through cable, and you can connect your PC with the switch, one of the port. Similarly, you can take another cable, which may I call it the patch cable. So I take a patch cable, connect the one of the interface with the other switch port, and similarly the third port with the third one. Very simple, very easy. Finally, I should take another straight cable and connect the switch with the router. But now I should give the IP address to all of them. So to giving an IP to a device is very, very simple, you know. For example, I give an IP
again you must remember that you should plan the IP addresses. हम ये तो यहाँ लैब में abruptly कोई भी दे सकते हैं, लेकिन you know that you should take care. So here I should give the IP address to my device, for example 192.168.10.10. Subnet mask 255.255.255, and let me the gateway is 192.168, which is the gateway 10 dot, sorry, 192.168.10.1. This is my first PC. Okay. Now I should go to the next one. PC, you can see here PC2, sorry, PC1 after PC0. Here I give the IP address 192.168.10.11. With this IP, with this subnet mask, and the default gateway is the gateway is the same for all of them. So 192.168.10.1. I'm not taking the DNS for the time being. Then I go to the number 3, which is PC2, and I give the IP address 192.168.10.12 and the subnet mask and the default gateway 192.168.110.1. Ladies and gentlemen, is there any question about these IP addresses, Salman, which I have given to the 3 PCs? Now the question is that I should go to the router, which is router 0. He's saying me to press the return key. So I press the enter and I'm on the router. Then I can go to the enable mode, enable, and I'm in the privilege exit mode. From the user exit mode, I moved to privilege exit mode. I can write here show IP interface brief, and it shows me that there are 2 gigabit ports, gigabit Ethernet ports, and both are down. Both are administratively down. So I have to check that which interface is, if I can view options, preferences, and I write here, click here, for example, always show port labels. So here you can see, gentlemen, that this interface is 0.0.0. This is the gigabit interface 0.0.0. Okay. So I go to the global configuration mode and I write conf terminal. Salman, are you comfortable? Conf terminal. And here I write interface gigabit 0/0/0. I am here now. Now the IP address is IP address, and I want to give IP address to this interface 192.168.10.1, and the subnet mask 255.255.255.0. I hope it's clear. SN and सलमान, तो इसको IP मिल गया. अब मुझे क्या करना चाहिए, स्पेशली SN एंड सलमान, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सब तो ग्रीन हो गए हैं. इसमें द कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिटवीन PC1, 2 and 3 through this switch. The green lines represent, but the router one is still showing red one. It means there is some issue. Can you tell me what the issue is? सर इसको सेव किया है? सेव नहीं किया, रैम में मौजूद है.
सेव कर घर में लेना। है, कर लेते हैं, लेकिन सेव करने से क्या फर्क पड़ेगा, कर लेते हैं। अगर आपको सेव करने में है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, विच इज, फिर मुझे यहाँ से सिर्फ निकलना होगा, लेकिन निकलने से पहले इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपका, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, दैट काम इज वैलिड जब तक कंप्यूटर ऑफ नहीं होता। मैंने तो ऑफ नहीं किया, ठीक है ना ऐसे। जी सर। तो फिर अलीना बता देगी, क्योंकि अलीना ने अभी भी पढ़ा है ये सब कुछ। इंटरफेस शट डाउन है, तो इसको क्या देना होगा, नो नो शट डाउन। शट, शाबाश, नो शट डाउन। तो देखें अब हमें क्या उस पे क्या मैसेज आ गया, चेंज स्टेट टू अप। और जो ही हमने स्टेट अप किया, आप देख सकते हैं एक ग्रीन हो गया, कुछ देर में दूसरा भी ग्रीन हो जाएगा, दूसरा भी ग्रीन हो जाएगा। अब हम इन द मीन टाइम हम इसका ओपन करते हैं कमांड टर्मिनल, और यहां पे कमांड देते हैं शो, जो अभी हमने दी था, आर्प -a, खाली, लीना खाली, नो एंट्रीज देयर। नाउ आई पिंग, ping 192.168.10.11, my neighbor PC1. I did it. So, as you know, 4 packets, each of 32 bytes will be sent. And now I do ARP -a again. You can see here that my table has been populated, that the MAC address of this machine 10.11, I am on 10.10. So it is populated. आप देख सकते हैं यहाँ राउटर के भी ग्रीन हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ राउटर के भी ये ट्राइंगल्स ग्रीन हो गए हैं। रियल नेटवर्क में ग्रीन नहीं होते, केबल के ऊपर कौन सी ग्रीन और रेड होगा, लेकिन यहाँ समझाने के लिए आपको ये बेहतर मेथड है। अब मैं करता हूं पिंग, मिसाल के तौर पे अपने राउटर को, यानी अपने डिफॉल्ट गेटवे को, पिंग 10.1, 4 पैकेट चले गए। अब मैं ARP -a करता हूं, अब मैं करता हूं ARP -a, आप देख सकते हैं कि 2 एंट्रीज हो गई हैं, 1 के भी आ गई है हमारे पास। तो जूं जूं ये पैकेट जाते रहते हैं, ARP टेबल पॉपुलेट होता जाता है। अब हम इसको अपडेट कहते होता हैं रहता ARP, इज इट क्लियर? -d। जी, ARP -d, तो ये ARP -d हो गया। अब अगर मैं इसको कहूं ARP -a, फिर नो एंट्रीज, फिर नया हो गया, इज गुड। अब हम, ये तो हमने इन डिवाइसेस पे करके देखा। अब अगर मैं इस राउटर पे आके करना चाहूं, तो मैं यहां से एग्जिट करता हूं, यहां से भी एग्जिट करता हूं, और अपने इस मोड में आ गया। और मैंने अभी आपको कमांड बताई, नाउ यू विल बी गिविंग द कमांड शो आईपी आर्प, शो आईपी आर्प। अब हम कमांड यहां पे देते हैं शो आईपी आर्प। यहां पे एंट्रीज कुछ आ गई, आप देख सकते हैं जी, ये बता रहा है कि 10.1 का ये है, और 10.10 ने इसको पैकेट भेजा था PC0, उसका मैक एड्रेस ये है 009-7C54.77D8। कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। गुड। आप यहां से भी अलीना पिंग कर सकती हैं, ये नहीं कि राउटर से पिंग नहीं किया जा सकता। मैं यहां से पिंग करता हूं, राउटर पे बैठ के मैं पिंग करता हूं PC0 को भी, 1 को भी, 2 को भी, विच इज 192.168.10.10। ये मैंने किया। तो इसमें देखें, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि जब भी आपको ये निशान नजर आते हैं, जो कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हैं, खुशी का निशान है, इट मीन सक्सेस, मीन्स सक्सेस। अगर डॉट आ जाए तो इसका मतलब है फेलियर। मिसाल के तौर पे एक आईपी नहीं है, पहले मैं 11 को करता हूं,
इसके भी पांच पांच पैकेट गए, पहला पैकेट मिस हुआ, पहला पैकेट मिस हुआ, डॉट आया, अगले 4 पैकेट बता भी रहा है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, कहता है कि सक्सेस रेट 80 है, यानी मैंने 5 पैकेट भेजे, 4 उनमें से रिसीव हो गए, रिसीव से मतलब उनका रिस्पॉन्स आ गया। ये पहला क्यों मिस हुआ? एसन से इसलिए पूछता हूं कि एसन ने ये कोर्स काफी टाइम पहले पढ़ाया। मुझे तो काफी चीजें ध्यान में नहीं रहा। ये पहला इसलिए कि उस वक्त आर्क हो रहा था और 2 सेकंड में जवाब नहीं आया, पैकेट गुम हो गया, मुझे नहीं चाहिए। याद आया Yes, लीना sir. एंड एसन? ओके नाइस। अब मैं करता हूं थर्ड को, 12 को। देखिए इसमें भी क्या जवाब आता है, देखिए पहला पैकेट यहां भी लॉस है, पहला डॉट है, डॉट मीन लॉस्ट, और अगले 4 पैकेट्स चले गए, गुड। अब करें तो कोई मसला नहीं होगा, आपके साथ 5 के 5 पैकेट सक्सेस है। और अब अगर आप यहां करें शो आईपी आर, आप देखेंगे कि आपका आर्क टेबल में 10.1 इसका अपना है, 10.10 जो कि इसको 3 मिनट पहले मिला है, ये एड्रेस है, 10.11, 10.12 सबके एड्रेसेस इसने अपने पास पॉपुलेट। अब अगर आप कोई पैकेट भेजें, इसको किसी से भी पूछने की, आर्क करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? तो यही चीज यहाँ पे ये करके दिखा रहा है, मैंने आपके साथ पूरा बना के और ये सारी चीज आपसे क्लियर कर ली कि आर्क -a का क्या मतलब है, शो आईपी आर्क पे क्या मसला है। क्लियर? ओके, तो ये लैब हम वायरशॉक में भी कर सकते हैं, हमने अभी लाइव नेटवर्क भी, लाइव तो नहीं है, सिमुलेटेड नेटवर्क भी करके देख दिया। सो बेसिकली इसके पीछे जो फ्रेम जाते हैं वो किसके होते हैं? आईसीएमपी के, जो कि क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसका फंक्शन क्या है अलीना, क्योंकि आज ही अलीना ने पढ़ा है कि आईसीएमपी ये काम ये है कि जो भी इश्यूज होते हैं ये उसको रिपोर्ट करता है। ये प्रोटोकॉल इस पर्पस के लिए रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है, इंफॉर्मेशन देने का प्रोटोकॉल है। जैसे अभी इसने 2 मिनट इंतजार किया, यस, गिव भी फीडबैक, वेरी नाइस वर्ड्स, गिव फीडबैक्स। Okay, now we come to the last topic, which is about the issues related to the ARP. तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ARP का सबसे बड़ा मसला जो है वो है ARP ब्रॉडकास्ट, यानी इससे एक स्ट्रॉन्ग भी ब्रॉडकास्ट का लाया जा सकता है। So this is a big issue कि अगर नोड्स बहुत ज्यादा आर करना शुरू कर दें, so they will be consuming the bandwidth of the network, so definitely it will reduce the performance, simple। तो ये तो कोई एक मसला कि अगर आपके लैन में कोई डिवाइस, उसके पास आईपीज हैं, उसके पास मैक टेबल है, लेकिन क्योंकि वो अब बुरे बंदे का कंप्यूटर है, हैकर का कंप्यूटर है, वो ऐसे ही आर्क करता है, यानी ब्रॉडकास्ट पैकेट्स भेजता है, तो लाजिमी तौर पे दूसरी मशीन्स को वो क्या कर देगा, बिजी कर देगा और कंज्यूम करेगा नेटवर्क की बैंडविड्थ को भी। दिस इज एन इशू। आर्क स्पूफिंग, ठीक, अल्दो के जब अगर रियल नेटवर्क हो, जैसे भी आपने देखा, अब आपके राउटर को किसी आर्क की जरूरत नहीं थी, अब आप राउटर से किसी को भी पिंग करें या कोई मैसेज भेजें, ट्रेस आरटी करें, कुछ भी करें, अब उसको आर्क की जरूरत नहीं है।
तो यही वो कह रहा है कि after the devices sent out the initial ARP broadcast and have learned the necessary MAC addresses, any impact of the network will be minimized. Clear? अब हम आते हैं स्पूफिंग की तरफ. ARP spoofing. This is basically a security issue. That is something important. That is something new. पूरे चैप्टर में अभी तक जो हम क्यों पढ़ा, क्योंकि अगर हमें बेसिक समझ ना आती तो हम ये आर्प प्रूफिंग पढ़ ही नहीं सकते थे. आर्प प्रूफिंग पढ़ ही नहीं सकते थे. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आर्प स्पूफिंग का मतलब है कि इस लेट करें H1 ने या ए नोड ने लेट करें कि उसने स्पूफ किया, उसने आर्प किया. किसको? उसने आर्प किया गेटवे को. ये अब आपको स्क्रीन पे बड़ा नजर आ रहा होगा. जी बिल्कुल नजर आ रहा है कि इसमें से किसी एक नोड ने गेटवे को, जिसका एड्रेस है 192.168.1.1 को क्या किया? आर्प किया. तो जवाब किसको देना चाहिए? गेटवे को देना चाहिए. असूल तो यही है, प्रिंसिपल तो यही है. लेकिन थ्रेट एक्टर ये करता है कि वो अपना मैक एड्रेस लगा के जल्दी से जवाब दे देता है. तो लाजमी बात है, जो पहले जवाब मिलेगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जो बाद में होगा समझा जाएगा ये कोई गलत है, उसको छोड़ दिया जाएगा. तो क्योंकि राउटर तो और भी बहुत से काम कर रहा है, राउटिंग भी कर रहा है, फॉरवर्डिंग भी कर रहा है, और नोड को भी सपोर्ट कर रहा है. तो लाजमी तौर पे ये थ्रेट एक्टर पहले से एड्रेस लगाएगा 1.1 और मैक एड्रेस अपना लगा देगा और इसको पैकेट वापस देगा आर्प रिप्लाई में. अब इसके पास एड्रेस होगा 1.1 और मैक एड्रेस होगा इसका, विच इज मैक 000C. तो अलीना और एहसन और सलमान, क्या नुकसान होगा कि अब जब ये ए नोड कोई भी पैकेट भेजेगी गेटवे की तरफ तो उस पर मैक एड्रेस तो लिखा होगा, इसका तो लिखा होगा. तो आदमी तौर पे राउटर तो उसको रिसीव ही नहीं करेगा, मैक उसका है ही नहीं. तो वो पैकेट किसके पास चला जाएगा? थ्रेट एक्टर के पास. और आपको पता है कि अगर थ्रेट एक्टर साहब ने वायर शॉक लगाया हुआ है या कोई भी इस किस्म का टूल अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया हुआ है, इस पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक उसके पास जाएगी और वो उसको अपने पास क्या करता जाएगा? सेव करता जाएगा. क्या करता जाएगा? सेव करता जाएगा. इसका मतलब है कि सारी उसमें आपने अपने यूजर नेम दिए, अपने पासवर्ड दिए, अपने मैसेजेस दिए, कुछ भी दिया, अपने यूजर नेम दिए, अपने पासवर्ड दिए, अपने पिन कोड्स दिए, all the traffic will be going to this person, hacker, and hacker will act as a man in the middle. क्यों? क्योंकि लाजमी तौर पे ये ट्रैफिक इसकी तो नहीं है. अगर ये ट्रैफिक को खा जाए तो सोर्स भेजेगा नहीं फर्दर, वो समझ जाएगा कि मेरी ट्रैफिक डेस्टिनेशन है ही नहीं, वो रुक जाएगा. तो ये क्या करता है? ये अगले उसी पैकेट को चेंज करके सोर्स खुद बनता है, डेस्टिनेशन रियल गेटवे को बनाता है और वो पैकेट गेटवे को दे देता है, गेटवे आगे भेज देता है. गेटवे जवाब वापस करेगा तो लाजमी तौर पे वो थ्रेट एक्टर के पास आएगा. तो जो सवाल किया गया था वो भी थ्रेट एक्टर के पास गया, जो जवाब आया वो भी थ्रेट एक्टर के पास गया, और वो इसी पैकेट को रिमूव करके और उसको रियल सोर्स की तरफ भेज देगा. तो सोर्स भी खुश, डेस्टिनेशन भी खुश और थ्रेट एक्टर भी खुश. दिस अटैक इज कॉल्ड आर्प स्पूफिंग. तो देखिए, आर्प तो अच्छे, मैंने बार बार ये कहता हूं कि आप जैसे अच्छे ज़हनों ने अच्छी चीजें बनाई,
जैसे अभी हमने आर्प की एग्जांपल ली, लेकिन थ्रेट एक्टर ने उसमें से कमियों को ढूंढ के, जिनको हम क्या कहते हैं, वुल्नरेबिलिटीज, तो उन्होंने वुल्नरेबिलिटीज को ढूंढकर उसको पर्पस वाइज इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी ट्रैफिक उसने इस पूरे नेटवर्क से आने वाली और जाने वाली ट्रैफिक वो इजीली कैप्चर कर सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है, उसको विजुअलाइज कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है इवन। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, डज इट मेक सेंस और नॉट? यस सर। Good. Salman, are you comfortable? Good. So we continue. तो यार स्पूफिंग पे वीडियो है, and with this your chapter is over. Your chapter number 8 is over. So I hope कि you have enjoyed this chapter. तो सारा ये काम पढ़ाने का मकसद ये आपको इश्यूज के साथ स्पेशली आर स्पूफिंग अटैक्स की तरफ आपको इशारा करना था। इसी तरह एक और अटैक भी होता है, वो इस लेयर का नहीं है इसके साथ, लेकिन उसका नाम भी इसी तरह का है, जिसको कहते हैं आईपी स्पूफिंग। नाम सुना होगा आपने, ये तो आर्प स्पूफिंग हमने पढ़ा है ना। तो इसके तरह एक और अटैक होता है जो कि आईपी स्पूफिंग का होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप डीएचसीपी से मांग रहे हो आईपी एज ए होस्ट, आप किससे मांग रहे हो? डीएचसीपी से। तो वहां पे एक रॉग डी, इस तरह यहां जैसे मैं यहां पे कहता हूं कि ये मेरा रॉग वो बना, ये मेरा रॉग गेटवे बना। रॉग का मतलब जाली। इसी तरह रॉग डीएचसीपी बन जाता है और वो आपको आईपी भी दे देता है, सब कुछ देता है, लेकिन गेटवे में अपना नाम लिखवा देता है। तो अभी देखिए मेरी जितनी भी ट्रैफिक बाहर जा रही है, आपकी तरफ जा रही है, वो कौन रिसीव कर रहा है? गेटवे। और गेटवे से जा रही है बाहर की तरफ, आपके घरों की तरफ। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रॉग डीएचपी बैठ जाए, रॉग गेटवे बैठ जाए, तो वो सारी ट्रैफिक मेरी ले लेगा और पूरी उसको वो चेंज भी कर सकता है, मॉनिटर भी कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। तो इस चैप्टर के साथ उसका तलक नहीं है, लेकिन इट इज अगेन अटैक, इट इज अगेन एन अटैक। कुछ बात समझ आई? जी सर। हाँ सेम है सलमान। ठीक है, इसको हम मैक स्पूफिंग भी कह सकते हैं, वेरी राइटली सेड बाय सलमान। तो आप इस किस्म के अटैक्स, मकसद ये है कि इसके अटैक्स को हमने करना भी है और इनको रोकना भी। तो अच्छी बात है कि हमने चीजों को देखना शुरू कर दिया है। तो अगला चैप्टर स्टार्ट में नहीं, ये चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर मैं शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि अब करूं भी तो 2-4 स्लाइड ही चलेंगी और चीजें रुक जाएंगी। नाइस इट विल बी, हो सकता है कि कल हमारे दिलावेज भी अवेलेबल हो और हमारा साले भी अवेलेबल हो। और कौन मिसिंग है? जी 2 लोग ही मिसिंग है या नहीं, कोई और भी है? लाइबा। लाइबा, बिल्कुल। तो क्या लाइबा भी गई हुई है गवर्न हाउस या नहीं? वो आज ऐसी क्लास नहीं ले रही अलीना? सर उसका एक्सीडेंट हुआ है। ओ खैरियत? किस चीज में? खैरियत से तो है, यूनिवर्सिटी से वापसी में गाड़ी का, तो खैरियत से है, नहीं बच गई, कोई ज्यादा जख्म वगैरह तो नहीं आए?
मेरी तरफ से उसको आप पूछ लीजिएगा, एंड वी ऑल प्रे कि शी मे गेट वेल सून। ठीक है? सो ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वी स्टॉप हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, और अगर नहीं तो हम अगले चैप्टर के साथ कल दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। सर ये स्विचिंग राउटिंग वाला कोर्स कब से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह? जेंटलमैन, ये आज मैंने अलीना यहाँ मौजूद है, मैंने क्लास में भी आज कहा कि कई लोगों ने, कुछ ने तो अभी तक फॉर्म ही, हमने एक आपको एक फॉर्म भेजा कि आप इसमें अपना एंट्री कर दें ताकि हमें एटलीस्ट ये तो पता चले कि हु इज इंटरेस्टेड एंड हु इज नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन कुछ ने, जैसे आप भी पूछ रहे हैं, लेकिन आपने फॉर्म में अपना कोई एंट्री नहीं की हुई, तो आप उस फॉर्म में भी एंट्री करें, प्लस आप रजिस्ट्रेशन फी जो है इसकी पे करें। वी वांट टू स्टार्ट इट एज क्विकली एज पॉसिबल। आपका तो ये कोर्स बेसिकली आप तो पहले से किया हुआ है आपने ये कोर्स ITN का, लेकिन अवेश का पूरा ग्रुप जो है उनका ये कोर्स तकरीबन 15-20 दिन हो गए खत्म हुआ है। तो वी वांट टू स्टार्ट इट एज अर्ली एज पॉसिबल, लेकिन ओनली वन पर्सन हैज पेड द रजिस्ट्रेशन फी। तो मुझे नहीं पता कि आई शुड पे इन बैक और यू पीपल विल रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल, सो वी मे स्टार्ट। सर हम पे करेंगे सर, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में सर इंशाल्लाह मैं आपको कर दूंगा सर, ठीक है, अपना नो भी प्रॉब्लम। और मिला लेकिन लेंगे। इसके साथ साथ आप सब लोग, सलमान, अलीना, जो भी आपके क्लास फेलोज हैं, बैचमेट्स हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएं कि जी अगर अच्छा, क्योंकि मैं आज भी ये बता रहा था कि अगर बाज औकात ये होता है, जैसे ऐसा आपके लोगों के साथ ही हुआ था कि आप लोगों ने नेक्स्ट कोर्स लेने से हट गए थे, और एक अक्सर रह गई थी जो कि कोर्स लेना चाहती थी, लेकिन हम कोर्स ऑफर नहीं कर सके उसके लिए। तो अगर कोर्स ज्यादा अच्छा होगा, नंबर ज्यादा होगा, तो अगर उनमें से कुछ लोग गिर भी जाते हैं तो वी विल डेफिनेटली स्टार्ट दी थर्ड कोर्स, और आपका कंप्लीट CCNA कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने जो भी आपके दोस्त हैं, अपने क्लासमेट्स हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएं कि अगर दे वांट, दे आर इंटरेस्टेड इन द नेटवर्क्स, डेफिनेटली सलमान के जितने भी MS के स्टूडेंट होंगे साथ, अगर उनकी नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं है तो दे शुड बी इंटरेस्टेड इन सच कोर्सेज। तो आप लोग उन तक ये मैसेज पहुंचाएं, ये ऐड प्रोवाइड करें, ताकि वो भी इस हमारे इस एकेडमी का हिस्सा बन सके। ठीक है सलमान, एहसन? सर मेरे साथ तो जो लड़के हैं तो उनमें से तो कोई भी नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सर इधर उधर और चीज़ों में लगे हुए हैं ना, मेरे साथ जो लोग हैं क्लास में। जी जी, लेकिन चलें, उनके जो भी आपके पास तो व्हाट्सएप सर ग्रुप उनमें वगैरह तो है उनमें डाल नेटवर्किंग दें। में इंटरेस्टेड कोई नहीं, फिर भी मैं। जी बिल्कुल। इस तरह अलीना, जी सर आप भी सही। अपने जो आपके बाकी साथी हैं, बाकी क्लासमेट्स हैं, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये मैसेज दे दें कि अगर वो चाहें तो दे कैन जॉइन अस इन दिस कोर्स, राइट? और सर एक और बात, ये सर आप जो मतलब अभी रिवीजन, मतलब ये हमारी एक तरह से रिवीजन ही हो रही है, लेकिन उसको स्विचिंग राउटिंग में जाने से पहले सर मैं एक दफ़ा ITN के पहले उसको रिवाइज करना चाहता हूँ ना, एक दफ़ा गो थ्रू करना चाहता हूँ। मेरे मतलब काफ़ी चीज़ें मुझे हैं भी, लेकिन कुछ चीज़ें माइंड से निकल गई हैं, और वो हमारे पास जिस तरह ये नेटक ऐड है उस पर अवेलेबल नहीं है। तो सर इसकी स्लाइड्स वगैरह मिल सकती हैं कि उसको मैं एक दफ़ा गो थ्रू कर लूँ, कि मुझे क्या नेट वो हो अकेडमी जाए। अवेलेबल नहीं है? क्या चीज नहीं नेट सर वो उस पे अकेडमी नहीं अवेलेबल है? नहीं। सर जो ITN का फर्स्ट कोर्स जो था ना, जो हमने किया था। ठीक है, स्लाइड आपको दोबारा मिल जाएंगी, नॉट एन इशू। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर, नहीं थैंक यू। सलमान, आपने क्वेश्चन पूछा कि ये आपका फुल जो CCNA है वो तो 3 मॉड्यूल्स है ना, आपको पता है सलमान। फर्स्ट इज द ITN which is the introduction to networks. Second is switching, routing and wireless essentials, and third will be inshallah enterprise networking, automation and security and automation. तो अभी हम, दिस इज नॉट RNS, अब नहीं है कोई भी ऐसा कोर्स, हो गया। अब है राउटिंग, स्विचिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स, उसका ये कोर्स है। और इसके बाद फिर हम तीसरा कोर्स करेंगे विच विल बी इंटरप्राइज नेटवर्किंग के ऊपर। तो ये 3 मिलके कंप्लीट CCNA बन जाएगा, फुल CCNA कोर्स बन जाएगा। अब बात समझ आ गई सलमान? ओके। अगर आपने भी नहीं किया हुआ या आपके दोस्त करना चाहें
तो उनके आपको मैंने शायद उसकी आपके ग्रुप्स में मैंने शेयर की हुई है, ये उनके साथ भी शेयर कर लेंगे कि अगर वो करना चाहते हैं तो दे शुड बिकम पार्ट ऑफ दिस एकेडमी। ठीक है जी। आई होप के देयर इज नो अदर क्वेश्चन जी फ्रॉम सर। योर साइड। सो जी और सर शेयर कर। ओके जी। जी हसन, और यू सर वांट टू ये से जो समथिंग? सर ये जो जी सर ये साइबर सिक्योरिटी वाला सर जो कोर्स है उसपे ये नेट अकेड में एंडिंग सून आ रहा है ना कि वीक 13 है, तो उसको उसकी डेट्स बढ़ा दें ताकि, क्योंकि अभी तो हम बहुत पीछे हैं एंडिंग से। नो प्रॉब्लम, वो मेरा मसला है, डोंट वरी, आप पढ़ते जाए, इट विल बी एक्सटेंडेड, नो इशू। ठीक है सर। ठीक ओके है जी, सर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह ओके टुमारो। सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।